देश की नई संसद भवन लेकर चल रहा है। इस बार शपथ ग्रहण का कार्यक्रम वही होगा और तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आ गई है। देखिए, पहली रो में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनाथ सिंह से बात कर रहे हैं, रक्षा मंत्री से वार्तालाप हो रही है। उसके बगल में अमित शाह है, फिर नितिन गडकरी है। ये दूसरी रो में आप देख रहे हैं अश्विनी वैष्णव के साथ प्रहलाद जोशी, किरण रिजिजू, जगत प्रकाश नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान और सर्बानंद सोनोवाल। और ये इन तस्वीरों में आप प्रधानमंत्री मोदी को देख सकते हैं, जिन्होंने सत्र से पहले आम जनता को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रगान के साथ ही 18वीं We are meeting today लोकसभा का पहला दिन on है, this शुरुआत हो गई। sitting of 18th Lok Sabha, which is a solemn occasion. A new Lok Sabha vested with great and onerous responsibilities for ensuring the welfare of the entire country and our people has been elected under the Constitution. Considering the solemnity of this occasion, and as is customary, we may all stand in silence for a short while before we begin our proceedings. Om Shanti. I congratulate all the members who have been elected to the 18th Lok Sabha. It gives me great pleasure to welcome all the members. I'm sure you will all help the chair in maintaining the high tradition of this house and thereby strengthening the edifice and the roots of our democratic polity. I wish you all success in your endeavor. Now I would request the Secretary General to lay on the table a list, Hindi and English versions, containing the names of the members elected to the 18th Lok Sabha at the general election of 2024, submitted by the Election Commission of India. Sir, I lay on the table a list, Hindi and English versions containing the names of members elected to the 18th Lok Sabha at the general elections of 2024, submitted by the Election Commission of India. I have to inform the House that the Honorable President has nominated the following members as members of the panel of chairpersons: Sri Suresh Kodikonal, Sri Talikotai Raju Thevar Balu, Sri Radha Mohan Singh, Sri Fagan Singh Kulaste, Sri Sudeep Bandopadhyay. Honorable members, I have to inform the House that Honorable Speaker had received Please have your seat. Please have your seat. Now here is an important announcement to make. Honorable members, I have to inform the House that Honorable Speaker had received a letter dated 17th June 2024 from Sri Rahul Gandhi, an elected member from the Wayanad Parliamentary Constituency of Kerala, resigning his seat in Lok Sabha. The Honorable Speaker has accepted the resignation of Sri Rahul Gandhi with effect from 18th June. The names of members will now be called by the Secretary General for the purpose of making
and subscribing an oath or affirmation. The Leader of the House, Honorable Prime Minister, will be called first. Thereafter, members of the panel of chairperson will be called. Then Ministers of Cabinet rank, Ministers of State independent charge, and State. Thereafter, the names of other members, state, union, territory wise, in alphabetical order will be called. The names of members who are not able to take the oath or make the affirmation at the first call will be called again at the end. If the name of any member is not pronounced correctly, it may be kindly be excused. Honorable members, on the name of a member being called by the Secretary General, the member may proceed from the place she or he is occupying to one of the podiums placed on either side of the Speaker's chair. A copy of the form for oath or affirmation in accordance with the third schedule to the Constitution of India, as the case may be, will be kept for the use of the member. The member will face the House while making the oath or affirmation and then wish the chair. Thereafter, the member will proceed to show the original election certificate at the table of the House and sign the roll of members which is placed on the table. Now, Secretary General. Prime Minister Shri Narendra Modi. मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। Sri Kodikonil Suresh, Sri T.R. Balu, Sri Radha Mohan Singh, मैं राधा मोहन सिंह जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। देखिए, एक तरफ अंदर शपथ की प्रक्रिया हो रही है, राधा मोहन सिंह चूंकि सीनियर लीडर हैं, और बाहर देखिए विरोध यहां पर हो रहा है।
हाँ। सभी यहां पर संविधान की कॉपी लेकर पहुंचे हुए हैं। श्री फग्गन सिंह कुलस्ते। मंडला से जीत के आए हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व में मंत्री रहे हैं। वरिष्ठ सदस्य होने की वजह से तीसरे क्रम पर शपथ लेने के लिए फग्गन सिंह कुलस्ते जा रहे हैं। मैं फग्गन सिंह कुलस्ते जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। देखिए, एक तरफ ये शपथ की प्रक्रिया चल रही है, फग्गन सिंह कुलस्ते ने शपथ लिया है, और दूसरी तरफ संविधान की कॉपी लेकर विपक्ष के सांसद यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। श्री सुदीप बंदोपाध्याय। कैबिनेट मिनिस्टर्स श्री राजनाथ सिंह। सुदीप बंदोपाध्याय चूंकि उपस्थित नहीं है, इसलिए राजनाथ सिंह शपथ लेंगे। लखनऊ से चुनकर आए हैं। मैं राजनाथ सिंह जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। श्री अमित शाह। अमित शाह गांधीनगर से लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए हैं। मैं अमित अनिल चंद्र शाह जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा।
इस बार अध्यक्ष की कुर्सी के साथ ही आप देख रहे हैं शपथ ग्रहण की प्रक्रिया हो रही है। पुरानी संसद भवन में ये नहीं था, नीचे ही शपथ लिया करते थे, लेकिन ये संसद भवन काफ़ी भव्य और दिव्य आपको नजर आ रही है। शिवराज सिंह चौहान भी मनोहर लाल के साथ बैठे हुए हैं। देखिए, जब तक ये हस्ताक्षर आप नहीं करते हैं तब तक शपथ पूरी नहीं मानी जाती है। श्री नितिन जयराम गडकरी। नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री हैं। मैं नितिन जयराम गडकरी जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। महाराष्ट्र के नागपुर से जीत कर आए हैं और बड़ी जीत के साथ यहां पर ये पहुंचे हैं। अठारहवीं लोकसभा के सत्र का आज पहला दिन है और शपथ ग्रहण की प्रक्रिया यहाँ पर की जा रही नितिन गडकरी के द्वारा। चूँकि जब तक मैंने पहले ही कहा कि हस्ताक्षर नहीं करते आप, ये प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। श्री शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान रिकॉर्ड मतों से जीत कर आए हैं। अभी कृषि मंत्री हैं, विदिशा से रिकॉर्ड मतों से जीत कर आए हैं। मैं शिवराज सिंह चौहान जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। शिवराज सिंह चौहान ने बतौर सांसद पद की शपथ ली है। बहुत बड़ी मार्जिन से जीत कर आए, चूंकि 8,21,400 वोट से तो ये जीते हैं और ओवरऑल 11 लाख से ज़्यादा मत इन्हें मिले थे। एक बड़ी मार्जिन 8,21,408 मतों से जीत कर ये यहाँ पर पहुँचे हैं शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के 2 सांसदों ने शपथ लिया अब तक, फग्गन सिंह कुलस्ते के बाद शिवराज सिंह चौहान। मनोहर लाल। मनोहर लाल पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं। मैं मनोहर लाल जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा।
श्री H.D. कुमारस्वामी। H.D. कुमारस्वामी जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं सीनियरिटी के आधार पर, वो अब शपथ ले रहे हैं। H.D. कुमारस्वामी। ಹರದನಹಳ್ಳಿ ದೇವೇಗೌಡ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಾದ ನಾನು ಲೋಕಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಚುನಾಯಿತನಾದವನಾಗಿ ಕಾನೂನು ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸತ್ಯ, ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೇನೆಂದು, ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತು ಅಖಂಡತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೇನೆಂದು ಮತ್ತು ನಾನು ಈಗ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ। जनता दल सेकुलर से सांसद हैं H.D. कुमारस्वामी। अब ये सीधे चले जा रहे थे, लेकिन वहाँ पर जो सचिव हैं उन्होंने उन्हें बुलाया और कहा कि आपको यहाँ पर हस्ताक्षर करना होगा। और लगातार इन तस्वीरों को हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं।